मैं माननीय गयाधर जी से निवेदन करता हूं, अभी उपक्रम शुरू करें। मैं माननीय गयाधर जी से अनुरोध करता हूं, अभी उपक्रम शुरू करें। गुरुदेव आ गए हैं, आचार्य चरण आ गए हैं, उपस्थित हो गए हैं। हाँ, शुरू कर दे। शुरू हरे कर कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। Do you hear me, please? Yes, yes. Pandavabu, please go on. All my adoration to the saints, to the scholar devotees present in this congregation. All my veneration to the three Pravachakas who have all along been instructing us on the ultimate aim of our lives. And also all my respectful homage to the audience. As usual, we are going to start our discussion on the topic as prescribed. Our talks speak of clarity in our comprehension and spontaneity in our expression. And all of our venerable spiritual talkers are conspicuous by their natural eloquence and coherence in their expression. Again, their staunch and unremitting devotion to Lord Krishna is an added advantage for us that leads us towards the state of samadhi, though for a shorter period. This is the time-tested miracle of Shravana Bhakti, very punctual, tenacious, sincere in their noble mission. They have already proved their mettle as successful preachers of the Lord by their spectacular wisdom and contemplative disposition. We come across the verse of Kavi Guru, Nishita Soyane Bhebe Rakhi Mane Ago Antarajami Prabhate Prathama Noyana Melia Tumare Herigo Ami. When I go to bed or we go to bed at night, we must keep in mind that soon after rising from sleep, we must remember you, the Lord, with all our heart and soul. This is the message we come across from one of the devotional songs of Kavi Guru Rabindranath Tagore. So, at dawn, the sound of the herald means the student recounting the previous day's Gita message as prelude to the next talks awakens me and all my family members with the rejuvenating voice announcing Lord Krishna's advent. Oh, my brothers and sisters, be ready to surrender your bodies, mind and soul at his feet daily. Total divination process is going on in each day and night, and this is the unqualified grace bestowed upon us by the Lord. Last evening, we listened to the episode on the Lord eating mud. Nahang bhakkhidavan amba sarve mithya avisansinah jali satya girastari samakhya pasyame mukham. Mother, I have not eaten mud. If you think so, then you examine my mouth in their presence. Mother said, open your mouth, and Sri showed his mouth to her. She saw within it the whole universe of the moving and unmoving entities, the sky, the earth, the moons, oceans, mountains, and all the other world. She also saw the whole heaven with its luminaries. But my query is, why did the Lord, the cosmic form, why did the Lord, what was the compelling situation necessitated for the manifestation of his cosmic form? I fail to understand the apparent reason for it. I request Venerable Acharya Narottam Sir
to kindly clarify it if time permits. So now I request Acharya Narottam Prabhu to kindly start his discourses from the verse that reads, एतद् विचित्रं सजीव काल स्वभाव कर्मा शैलिंग भेदम सुनस्तनो वीक्ष विदारितास्य ब्रजं सातमानम बाप शंकाम किं स्वप्न एतद् उत देव माया किं वा मदीयो बत बुद्धिमोहः अथो अमुष्य एव ममार्भकस्य ज कश्चन उत्पत्तिक आत्मयोगः. Now I request Venerable Narottam Sir to start his discourses as usual. Namo Namaः. अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जना शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च. हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तुते. तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. आज के इस सायंकालीन कथा सत्र में उपस्थित समस्त संतजनों भक्तजनों सुधी श्रीमद्भागवत कथा रस पिपासु भक्तजनों के चरणों में अनंतानंत प्रणाम बार बार निवेदन करता हूँ. हमारे मित्र पंडा बाबू जी के चरणों में प्रणति निवेदन करता हूँ और जो लोग भी जुटे हुए हैं. आपने बहुत सुंदर ढंग से कल के विषयों की चर्चा की. आपने यह भी पूछा कि भगवान को तो मुख दिखा करके इतना ही प्रमाणित करना था कि मैंने मिट्टी नहीं खाई, तो भगवान ने विश्व ब्रह्मांड का दर्शन क्यों कराया, यह शायद आपका प्रश्न था. तो इसकी चर्चा काफी कुछ हुई है. अर्थात श्री चक्रवर्तीपाद की टीका में जो तत्व है उसकी चर्चा कई बार हुई है. मुझे जहां तक समझ में आ रहा है, देखिए भगवान लीला कर रहे हैं मैया के साथ. बालोचित लीला
भगवान कर रहे हैं, अर्थात अपने को असहाय एवं अपने को शासनीय, मैया के द्वारा दंडनीय या मैया के डांट के योग्य अपना बनाना चाहते हैं, क्योंकि उसी में उनको आह्लाद है, आनंद है। तो इसलिए जैसे बच्चे अपने करतूतों को छुपाते हैं, कुछ दुष्टता को छुपाते हैं, तो भगवान भी उसी तरह से अपनी दुष्टता को, मिट्टी खाने की जो क्रिया है उसको छुपाते हैं, क्योंकि भगवान जानते हैं अगर मैया समझ जाएगी मैंने मिट्टी खाई है, बहुत नाराज होगी, क्योंकि भगवान का स्वास्थ्य का कितनी चिंता मैया को रहती है इसके बारे में भगवान को मालूम है। इसलिए वो हर तरह से छुपाना चाहते थे। लेकिन जब मैया को मुखमंडल का दर्शन करा रहे हैं, मुख गह्वर का दर्शन करा रहे हैं, तब ये संभावना है, अर्थात यह संभावना बहुत बलवती संभावना है कि मैया को कुछ न कुछ सुराख पता चल जाएगा कि हाँ इन्होंने मिट्टी खाई है। तब पता चलने पर भगवान की डांट पड़ेगी, भगवान को मार भी पड़ेगा। तो इस तरह की बात है। लेकिन भगवान दंड लाभ करना नहीं चाहते हैं, अर्थात मैया से दंडित होना नहीं चाहते हैं। तो वो कैसे संभव है? तो वो भगवान का संकल्प है कि मैया हमको दंडित न करे, इसलिए झूठ भी बोल रहे हैं, इसलिए अपनी ओर से मुख गह्वर का दर्शन भी करा रहे हैं। लेकिन भगवान की जो ईश्वरी शक्ति है, वो ईश्वरी शक्ति समझ रही है कि मैया किसी न किसी तरह से इस बात का पता लगा लेगी कि भगवान ने मिट्टी खाई है। अगर हुआ तो फिर भगवान के ऊपर मार पड़ेगा या डांट पड़ेगी, जो भी हो। इसीलिए भगवान की जो ऐसी शक्ति है, ईश्वरत्व है, ईश्वरी शक्ति है, उस शक्ति को एक मौका मिला यहाँ भगवान की सेवा करने के लिए। क्योंकि भगवान यहाँ बाल्य रस का आस्वादन, वात्सल्य रस का आस्वादन करना चाहते हैं। अपना ईश्वरत्व को प्रकाशित करने का उनको हरगिज कोई कामना नहीं है। लेकिन भगवान की जो नित्य ईश्वर शक्ति है, ऐसी शक्ति है, तो वो शक्ति क्या कर रही है? भगवान के संकल्प को पूरा कर रही है। भगवान का संकल्प है कि मैया हमको न मारे, मैया हमको न पीटे, यह भगवान का संकल्प है। यह जो भगवान का संकल्प है उसको पूरा करने के लिए, उसकी सेवा करने के लिए, उसको पूर्ण करने के लिए वो शक्ति सामने आ जाती है, अर्थात वो सेवा करती है। वो कैसे सेवा करती है ना? हे मैया, तुम जिसको दंडित करना चाहती हो वो कोई सामान्य बालक नहीं है। ये शक्तियां चिंता करती हैं, शक्तियां सेवा करती हैं, ये कोई सामान्य बालक नहीं है। वो तो अनंत कोटि ब्रह्मांड का मालिक है। इस तरह से भगवान के उदर में विश्व का दर्शन होता है, जिससे मैया का क्रोध नष्ट हो जाता है। क्योंकि मैया पहले बाल्य रस का आस्वादन कर रही थी, वात्सल्य रस का, उसके बाद मैया के हृदय में क्रोध आया दूसरे स्टेज में। तीसरे स्टेज में मैया अभी विस्मय रस का आस्वादन कर रही है। तो विस्मय रस के सामने मैया का जो कोप है वो भाग गया। तो भगवान की जो सत्य संकल्पता है उसको सही ठहराने के लिए, उसको पूर्ण करने के लिए, उसकी सत्य संकल्पता को प्रमाणित करने के लिए, यथार्थ करने के लिए भगवान की जो ऐसी शक्ति है वो सामने आकर के इस तरह के अनंत कोटि विश्व का प्रदर्शन करा रही है, ताकि मैया का कोप भाग जाए। सही में ऐसा ही हुआ। मैया सब वो भूल गई, मैया दूसरी चिंता में पड़ गई। पहली तो मैया की चिंता थी ये मिट्टी खा रहा है, इसका पेट खराब हो जाएगा।
लेकिन उससे बड़ी और दूसरी चिंता आ गई, ये क्या है, इसके उदर में मैं ऐसा क्यों देख रहा हूँ, ये क्या क्या, ये हमारा पुत्र है कि भगवान है, क्या है, इसकी चर्चा आगे होगी। अर्थात मैया दूसरी समस्या में पड़ गई। कोई बड़ी समस्या अगर आ जाती है तो हम लोगों की छोटी समस्या नगण्य हो जाती है, छोटी समस्या की ओर हम लोगों की नजर नहीं जाती है। तो ये मैया को बड़ी समस्या आ गई, तो भगवान की ऐसी शक्ति इस बड़ी समस्या को उत्पन्न करके मैया के हृदय से क्रोध को दूर करके मैया को विस्मय रस का आस्वादन करा रही है भगवान की जो ऐसी शक्ति। यह शायद इस तरह की व्याख्या श्री चक्रवर्ती पाद ने की है। तो आपने जैसे कहा, अभी हम लोग एतद विचित्रम इस श्लोक की व्याख्या श्रवण कर रहे थे, इसमें थोड़ा सा बाकी है, उसका भी अर्थ श्रवण कर लें। एतद विचित्रम सहजीव काल स्वभाव कर्माशयलिंग भेदम सूनोस्तनौ वीक्ष विदारितास्ये ब्रजम सहात्मानाम अवाप शंकाम। अर्थात यशोदा मैया शंकाम अवाप, उनको आशंका हो गई, अर्थात उनको डर हो गया कि इस बच्चे के हृदय में, इस बच्चे के उदर में, इस बच्चे के शरीर में ऐसा क्यों है, कहीं इसको कुछ अनिष्ट तो नहीं हो गया, कोई भूत प्रेत पिशाच आदि का आवेश तो नहीं हो गया। इस तरह से भगवान के बारे में मैया को अत्यंत चिंता हो गई, उसके भगवान के अनिष्ट की आशंका मैया के हृदय में हो रही है। क्या करके ना, विदारितास्ये सूनो तनो वीक्ष, विदारित है अर्थात मोचित है, प्रसारित है, आस्य मुखद्वार जिस भगवान के शरीर में मुखद्वार विस्तारित है, उन्मुक्त है, जिसके माध्यम से मैया भगवान के उदर में ब्रह्मांड दर्शन कर रही है, तो ऐसे भगवान का दर्शन करके मैया को शंका हो गई। तो सूनो तनौ वीक्ष, कीदृश तनौ विदारितास्य, जिस तनु में आस्य का विदारण हो गया है, अर्थात आस्य मुकुलित अर्थात अमुकुलित अर्थात उन्मोचित हो गया है। तो क्या दर्शन करके ना, विचित्रम विश्वम, कैसा विचित्र विश्व, जिसमें लिंग भेद है। लिंग भेद अर्थात लिंग शरीर का भी, जो जितने जीव हैं उनके जो सूक्ष्म शरीर हैं वे भी उस विश्व में दिख रहे हैं। तो लिंग भेद कैसे हो गया, लिंग भेद का जो कारण है, अर्थात लिंग शरीर का जो भेद है, प्रत्येक जीव का लिंग शरीर का भेद होता है, इसकी चर्चा हम लोग कल कर रहे थे। वो इन कारणों से होता है, जीव, काल, स्वभाव, कर्म और आशय, इनके कारण जो लिंग भेद है अर्थात सूक्ष्म शरीर का जो भेद होता है, वैसा भेद अर्थात भिन्न भिन्न लिंग शरीर, अनंत लिंग शरीर भगवान के उस उदर में विश्व के साथ मैया दर्शन कर रही है। ये तो श्लोक का मूल अर्थ हुआ। इसकी व्याख्या भी हम थोड़ा बहुत पढ़े थे, एक बार और पढ़ लेते हैं। पुनश्च प्रपंचयति एतद् विश्वम सह युगपद एव वीक्ष, किसको देख करके ना, जीवश्च गुणक्षोभकः कालश्च परिणाम हेतु स्वभावश्च जन्म हेतु कर्म च तत्संस्कार आशयश्च। ये हुआ जीव, काल, स्वभाव, कर्माशय, इनके द्वारा लिंगानाम शरीराणाम भेद यस्मिन्, अर्थात जिस विश्व में मैया विश्व का दर्शन कर रही है भगवान के उदर में, जिस विश्व में लिंग शरीरों का पारस्परिक भेद है, अर्थात अनंत लिंग शरीर हैं, जिनका भेद इनके कारण हुआ है, अर्थात काल, परिमाण, काल, स्वभाव, जन्म, कर्म इत्यादि के कारण। तनौ कुक्षौ विदारिते प्रसारिते आस्ये, अर्थात आस्य द्वारा कुक्षौ इत्यर्थः। सहात्मानम आत्मपति पुत्रादि सहितम ब्रजम च, यहाँ तक हम लोग कल श्रवण किए थे। अर्थात यशोदा मैया सहात्मानम, आत्म सहित,
यहाँ आत्म शब्द का अर्थ है खुद, पति, पुत्र, ये सब आत्म शब्द के अर्थ हैं। उनके सहित विश्व को दर्शन करके, सहितम ब्रजम च, हाँ, अर्थात विश्व का दर्शन कर रही है, समस्त ब्रजमंडल का दर्शन कर रही है, जिस ब्रजमंडल में खुद मैया हैं, भगवान भी हैं, उनके पति भी हैं और बंधु बांधव सब अपने परिचित लोग हैं। ये समस्त ब्रजवासी सहित ब्रजमंडल का दर्शन भगवान के उदर में मैया कर रही है। इसी बात को श्री चक्रवर्ती बात कह रहे हैं, यस्य कुक्षा विदम विश्वम, अर्थात ब्रह्मा जी की स्तुति में भी यही बात कही गई है। यस्य कुक्षा विदम सर्वम सात्मम भाति यथा तथा तत्त्वय्यपि तत्सर्वम किमिदम मायया विना, अर्थात भगवान की माया शक्ति के द्वारा। देखिए यहाँ समझना चाहिए कि मैया को जो भगवान विश्व का दर्शन करा रहे हैं वो अपनी योग माया शक्ति के कारण, क्योंकि भक्तों के साथ जब भगवान कोई लीला करते हैं तो अपनी योग माया शक्ति के अवलंबन से ही करते हैं। सामान्य जो माया शक्ति है, त्रिगुणात्मक जो माया शक्ति है, वो भक्तों को मोहित नहीं कर पा रही है। तो किमिदम मायया विना, ब्रह्मा जी स्तुति कर रहे हैं, आपकी योग माया के बिना, आपका जो उन्नत माया शक्ति है, श्रेष्ठ माया शक्ति है, उसके बिना क्या यह संभव है कि जो विश्व बाहर दिख रहा है वो विश्व उदर में भी दिखे? अब वो उदर में कैसे दिख रहा है, कल इसकी चर्चा हुई थी, वो कोई प्रतिबिंब नहीं है। अर्थात जैसे मुखमंडल का दर्शन हम दर्पण में करते हैं तो मुख का प्रतिबिंब का दर्शन होता है, वो मुख नहीं होता है। तो उस तरह से इस ब्रह्मांड का दर्शन जो उदर में हो रहा है वो ब्रह्मांड का प्रतिबिंब नहीं है, क्योंकि श्लोक में कहा गया है यथा तथा, अर्थात यथा वही भवति तथैव उदरस्य अंतः अपि भवति, अर्थात भगवान को भगवान के उदर में मैया बाहर जैसे विश्व है उसी तरह के विश्व, वही विश्व दिख रहा है, उसका प्रतिबिंब नहीं है। तो ये संभव कब है? जब भगवान अपनी माया शक्ति के द्वारा, योग माया शक्ति के द्वारा ऐसा करना चाहें तभी संभव है, या भगवान की जो शक्ति है, ऐसी शक्ति है, वो ऐसा करना चाहती है तभी संभव है। यस्य कुक्षा विदम विश्वम इति ब्रह्मोक्ते है अस्यैव विश्वस्य अंतःस्थितत्व बहिस्थितत्वे अचिंत्य योग मायया दर्शिते, अर्थात यह जो विश्व, अस्यैव विश्वस्य, अर्थात जो विश्व बाहर है, जो जिस विश्व में हम लोग निवास कर रहे हैं, वही विश्व वो अंतःस्थित भी है और बहिस्थित भी है। अर्थात भगवान के शरीर में वही विश्व है और भगवान के शरीर से बाहर भी वही विश्व है। तो विश्व से अंतःस्थितत्व बहिस्थितत्वे दर्शिते, कथम दर्शिते? अचिंत्य योग मायया दर्शिते, भगवान की जो योग माया शक्ति है उसके द्वारा विश्व बाहर भी दिख रहा है, भीतर भी दिख रहा है। दिख रहा है ऐसी बात नहीं है, वो है भी, अर्थात यह विश्व बाहर भी है भीतर भी है। ततश्च कृष्ण शरीरस्य, श्री चक्रवर्ती पाद भगवान के स्वरूप का विवरण देते हुए कह रहे हैं, ततश्च कृष्ण शरीरस्य जगन मध्यवर्तित्व जगद व्यापकत्वाभ्याम परिच्छिन्नत्वा परिच्छिन्नत्वे वास्तवे यति इति व्यंजिते। देखिए भगवान का जो शरीर है, भगवान श्री कृष्ण का जो शरीर है वो परिच्छिन्न भी है और अपरिच्छिन्न भी है। परिच्छिन्न का मतलब देश कालादि से लिमिटेड, अर्थात जिसकी सीमित, परिच्छिन्न का मतलब है सीमित और अपरिच्छिन्न का मतलब असीमित, अर्थात भगवान का शरीर असीम भी है और ससीम भी है। तो यह केवल इस लीला से पता नहीं चलता है, आगे के अध्याय में जब दामोदर लीला, दामबंधन लीला की चर्चा होगी वहां भी इसी तरह की बात कही गई है। अर्थात जब यशोदा मैया
रज्जु से भगवान के उदर को बांधना चाहती है, कितनी बड़ी बड़ी रज्जुओं का संग्रह करती है, लेकिन भगवान का उदर नहीं बंधता है। अर्थात उससे क्या पता चलता है कि भगवान का उदर असीम है। लेकिन भगवान जो कमर में जो करधनी अर्थात कमर पट्टी पहने हुए थे, स्वर्ण का या रत्नादि खचित जो कमर की पट्टी है, वह भी बंधा हुआ है, पट्टी बंधी हुई है, भगवान के उदर को वह बांध रखी है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि भगवान का उदर छोटा भी है और भगवान का उदर बड़े से बड़ा भी है, जो इतनी सारी रज्जुओं को इकट्ठे करने के अर्थात जोड़ने के बाद भी भगवान का उदर को मैया नहीं बांध सकती है। तो इसका यही मतलब हुआ, भगवान परिच्छिन्न भी हैं और भगवान अपरिच्छिन्न में है। तो यहाँ भी उसी तरह की बात है, यशोदा मैया के घर में भगवान विद्यमान हैं, ब्रज में भगवान विद्यमान हैं, इसलिए भगवान परिच्छिन्न है। और भगवान के उदर में समस्त ब्रह्मांड है, इसका क्या मतलब हुआ कि ब्रह्मांड से बाहर भी भगवान है। कैसे? जब भगवान के शरीर के अंदर ही सब ब्रह्मांड है, अर्थात समस्त ब्रह्मांड से भी भगवान की व्यापकता है, बृहत्तरता है। तो इसका मतलब है भगवान परिच्छिन्न भी हैं, भगवान अपरिच्छिन्न भी। ततश्च कृष्ण शरीरस्य जगन मध्यवर्तित्व जगद व्यापकत्वाभ्याम, भगवान का शरीर जगत मध्यवर्ती है, इसीलिए परिच्छिन्न है अर्थात ससीम है, और जगत व्यापक है अर्थात जगत को अपने में समाया हुआ है, जगत से बाहर भी है। इसका मतलब हुआ वो अपरिच्छिन्न है, असीम है। और ये दोनों वास्तव हैं, कोई मैजिक वाली बात नहीं है। थोड़ी देर के लिए इसको हम दिखा करके, जैसे मैजिशियन विचित्र चित्रों का दर्शन कराता है, वैसा नहीं है। ये वस्तुतः भगवान ऐसे हैं, वास्तवे एवं व्यंजिते। ऐश्वर्योपासकानां विश्वस्मिन् भगवद दर्शनम भगवती विश्व दर्शनम यद उक्तम तद एतदेव माधुर्योपासक शिरोधार्य पदाम्बुजया श्री यशोदया दृष्टम दृष्ट्वा च शंकाम पुत्रम प्रति अनिष्ट शंकाम अवाप। श्री चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं कि जो भगवान के ऐश्वर्य के उपासक हैं, भगवान के ईश्वरत्व के जो उपासक हैं, भगवान को जो ईश्वर रूप में उपासना करते हैं, यशोदा मैया प्रभृति तो भगवान को कभी ईश्वर मानने के लिए तैयार नहीं है। अगर कहीं ईश्वर मानने के लिए बाध्य हो जाती हो तो भी वो मानना नहीं चाहती हैं। अर्थात ईश्वर मानने के लिए समस्त परिस्थिति अगर हो तो भी मैया ईश्वर मानने के लिए तैयार नहीं। लेकिन ऐसे बहुत सारे उपासक हैं भगवान के, जो भगवान को ईश्वर के रूप में मानते हैं। तो ईश्वर के रूप में जो भगवान को मानते हैं, उनकी उपासना कैसे होती है ना, विश्वस्मिन भगवत दर्शनम, अर्थात वे समस्त जगहों में, समस्त पदार्थों में भगवान का दर्शन करते हैं और भगवान में समस्त विश्व का दर्शन करते हैं। भगवान के ऐश्वर्योपासकों का यह स्वभाव होता है, वे समस्त पदार्थों में, समस्त जीवों में, समस्त प्राणियों में, कीट पतंग आदि समस्त स्थान में वे भगवान के अस्तित्व का दर्शन करते हैं। और दूसरी बात है कि भगवान में भी जगत का अस्तित्व का दर्शन करते हैं। इसी को गीता में कहा गया, यो माम पश्यति सर्वत्र, जो हमको सब जगह देखे, और सर्वम च मयि पश्यति, और जो मेरे में सब कुछ देखे, तस्याहं न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति, अर्थात उसका कभी विनाश नहीं होता है मेरे लिए, या मेरा भी कभी उसके लिए, मैं भी कभी उनसे दूर नहीं होता हूँ। वे मेरे से कभी दूर नहीं होते हैं, मैं भी उनसे कभी भी दूर नहीं होता हूँ। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। यह भगवान की भगवत्ता, यही चीज तो है भगवान की भगवत्ता। अगर हमारे जैसे होते, जैसे हम लोग जिस घर में विद्यमान हो, वह घर हमारे में विद्यमान नहीं हो सकता है। घर के किसी कमरे में हम बैठे हों
तो हम वहीं बैठे रहते हैं। वो घर हमारे अंदर नहीं बैठा रहता है, हमारे उदर में, हमारे शरीर में वो घर नहीं रहता है, क्योंकि हम जीव हैं, हम असमर्थ हैं और भगवान सर्वसमर्थ हैं। इसी में ही भगवान की भगवत्ता है। अंतर बहिश्च भूतानाम अचरम चरमेव च सूक्ष्मत्वा तद्विज्ञेयम दूरस्थम चान्तिके ततत। अर्थात भगवान दूर भी हैं, भगवान निकट भी हैं, भगवान अणु भी हैं, भगवान महान भी हैं, अणो रणीयान महतो महीयान। अर्थात जितने भी विरुद्ध धर्म अन्यत्र समन्वित नहीं हो सकते हैं। हम लोगों में ऐसा धर्म समन्वित नहीं हो सकता है, लेकिन भगवान में ये धर्म, ये अत्यंत विरुद्ध धर्म जिसकी संभावना भी हम लोग नहीं कर सकते हैं, ऐसे धर्म भगवान में अनायास खुशी खुशी से, अत्यंत प्रेम से समन्वित होकर के रहते हैं। इसी को ईशोपनिषद में कहा गया तदेजति तन्नैजति तद्दूरे तद्वंतिके तदेजति। अर्थात वो चलता भी है, तन्नैजति वो नहीं भी चलता है, तदेजति तन्नैजति तद्दूरे, और वे दूर भी हैं, तदु अंतिके अर्थात वे अंतिक में भी है, पास में भी है। तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः, वे सभी के अंतर में है और सभी के बाहर में भी है। तो भगवान में ऐसे गुण समन्वित हो सकते हैं, होते ही हैं। तो श्री चक्रवर्तीपाद का कहना है, जो भगवान के ईश्वरत्व की उपासना करते हैं उनको भगवान इस रूप में दिखते हैं, जगत के अंदर भी दिखते हैं और जगत उनके अंदर भी दिखता है, इस तरह की बात। लेकिन जो माधुर्य उपासक होते हैं उनको ये सब नहीं दिखता है, उनको भगवान का ईश्वरत्व का बोध नहीं होता है। अगर कहीं बोध हो भी जाए तो उसका अभिनंदन नहीं करते हैं, अर्थात उस तरह की शक्ति को, उस तरह के स्वरूप को भगवान का वो याद भी नहीं रखना चाहते हैं। तो माधुर्योपासक शिरोधार्य पदाम्बुजया, लेकिन जो माधुर्योपासक में सर्वश्रेष्ठ हैं, अर्थात माधुर्य उपासक के शकों के द्वारा जिनके चरण कमल शिरोधार्य हैं, अर्थात जो भगवान के बाल्य स्वरूप की उपासना करते हैं, उनके सबसे आदरणीय कौन है? यशोदा मैया है। क्योंकि इतना वात्सल्य रस का उपासना और दूसरा कोई नहीं कर सकता है, इतना वात्सल्य रस का आह्लाद आनंद कोई दूसरा नहीं ले सकता है। इसीलिए जितने भी वात्सल्य रस के उपासक हैं सभी के द्वारा श्री यशोदा मैया का चरण वंदनीय है। उसी बात को कह रहे हैं, माधुर्योपासक शिरोधार्य, समस्त माधुर्योपासकों के द्वारा शिरोधार्य है, अर्थात मस्तक के द्वारा अर्चनीय है पदाम्बुज चरण कमल जिस मैया का। वह मैया जब इस तरह के भगवान का ईश्वरत्व का दर्शन करती है तो घबरा जाती है, क्योंकि वो इसकी कल्पना भी नहीं कर सकती है, अर्थात इसका सहन ही नहीं कर सकती है। अपना पुत्र को वो ईश्वर नहीं मान सकती है। दृष्ट्वा शंकाम पुत्र प्रति अनिष्ट शंकाम अवाप, मैया डर गई कि इस तरह के जो स्वरूप मैं अपने पुत्र के शरीर में, पुत्र के उदर में देख रहा हूँ, यह तो पुत्र के अनिष्ट का कोई ना कोई संकेत है, कोई ना कोई लक्षण है, तो हमारा पुत्र का इससे अकल्याण होने वाला है। इस तरह की शंका, इस तरह की चिंता प्राप्त हुई, अर्थात अत्यंत चिंतित हो गई। इसी बात को एतद् विचित्रम सहजीव काल स्वभाव कर्मा सयलिंग भेदम सूनोस्तनो वीक्ष्य विदारितास्ये ब्रजम सहात्मानामवाप शंकाम। तो ऐसा करके मैया अब सोच रही है क्या हो गया, ऐसा क्यों हो रहा है। किं स्वप्न एतद् उत देव माया किं वा मदीयो बत बुद्धिमोहः अथो अमुष्यैव ममार्भकस्य यः कश्चन उत्पत्तिक आत्मयोगः। किं स्वप्न एतद् उत देव माया किं वा मदीयो बत बुद्धिमोहः अथो अमुष्यैव
ममार्भकस्य यः कश्चन उत्पत्तिक आत्मयोगः किं स्वप्न एतत्, अर्थात मैं क्या सपना देख रहा हूँ, स्वप्न में क्या ये सब देख रहा हूँ या यथार्थ है। उत देव माया, या देवताओं ने कपट करके या इच्छा करके हमको ऐसा दर्शन करा रहे हैं। देवता अर्थात देवगण हमको अपनी संकल्प से ऐसा दर्शन करा रहे हैं। ये देवताओं की माया है क्या? किंग स्वप्न एतद उत देव माया, या ऐसा भी हो सकता है किंबा मदीय बत बुद्धि मोह, मेरी बुद्धि में कुछ विकार आ गया है, मेरी बुद्धि कुछ बिगड़ गई है, जिसके कारण मेरे लाला के उदर में मैं ऐसा देख रहा हूँ, लाला के शरीर में मैं ऐसा दर्शन कर रहा हूँ। अथो अमुष्यैव ममार्भकस्य यः कश्चनोत्पत्तिकात्मयोगः, या ऐसा भी संभव है क्या इस बालक का कोई मम अर्भकस्य, अर्भकस्य अर्थात पुत्रस्य, कैसा पुत्रस्य? अमुष्यैव अर्थात इसी बच्चे का कोई ये औत्पत्ति का आत्मयोग है क्या? आत्मयोग का अर्थ है ऐश्वर्य, आत्म ऐश्वर्य, जो औत्पत्तिक है, स्वाभाविक है या अचिंत्य है। यह कोई अचिंत्य ऐश्वर्य हमारे पुत्र का है क्या? मेरे पुत्र का, इस कन्हैया का, इस बालक का कोई अचिंत्य ऐश्वर्य है क्या जिसका मैं दर्शन कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैया को इस तरह की विकल्प मैया के हृदय में आते हैं। तो यहाँ 4 विकल्प बताए गए हैं। किंग स्वप्न एतत्, एतत् किम स्वप्न, अर्थात स्वप्न के कारण क्या मैं ऐसा देख रही हूँ। द्वितीय विकल्प है ये देवताओं की माया है क्या, या मेरी बुद्धि का कोई मोह है क्या, बुद्धि में कोई विकार आ गया है क्या। तीसरा पक्ष, या इस बालक का कोई कारनामा है, अर्थात इस पुत्र का कोई ऐश्वर्य है, कोई सामर्थ्य है जो अचिंत्य सामर्थ्य है, जिसके कारण हम ऐसा दर्शन कर रहे हैं। ये 4 विकल्प आए हैं। इसको बहुत सुंदर ढंग से श्री चक्रवर्ती पाद इसकी व्याख्या कर रहे हैं। हम सीधे उनकी व्याख्या का अध्ययन करेंगे। तादृश दर्शनस्य कारणम वितर्कयति, अर्थात विश्व के दर्शन करने के क्या कारण हो सकते हैं, वो अपनी बुद्धि से विचार कर रही है, विभिन्न विकल्पों पर चिंता कर रही है। किंग स्वप्न एतद् दर्शनम किंग स्वप्न हेतुकम, अर्थात मैं स्वप्न में हूं क्या जिसके कारण मुझे ऐसा सब दिख रहा है। क्योंकि स्वप्न में क्या होता है, अदृष्टमप्यदृष्ट वैभवात करोति सुप्तिर्जन दर्शनातिथिम। स्वप्न का स्वभाव है कि कभी भी अननुभूत जो वस्तु है, अर्थात जिस वस्तु का हम लोगों ने कभी दर्शन नहीं किया, ऐसी भी वस्तु स्वप्न में दिख जाते हैं। अदृष्टमप्यदृष्ट वैभवात, अदृष्टमप्यर्थम अदृष्ट वैभवात, अर्थात अगर अदृष्ट हो, अर्थात हमारा अगर पुण्य पाप ऐसा हो, अदृष्टमपि अर्थम सुप्ति ही जन दर्शनातिथिम करोति। सुप्ति का मतलब स्वप्न, वह जन दर्शन के अतिथि अदृष्ट पदार्थों को भी करा देती है। अर्थात जिस चीज का कोई अनुभव कभी नहीं है, जिसका कभी हमने देखा भी नहीं, जिसकी कभी चर्चा भी नहीं हुई, ऐसे पदार्थ स्वप्न में आ जाते हैं। तो मैया कहती है ये स्वप्न के कारण मैं ऐसा सब देख रहा हूं क्या। किंग स्वप्न एतद् दर्शनम किम स्वप्न हेतुकम, तो फिर उसके बाद करेंगे ना स्वप्न तो है नहीं, नहीं निद्रालस्य नयन कालुष्याद्यभावात्, न निद्रा का अभी कोई प्रसंग है, न मेरे शरीर में आलस्य है, न नयन में कोई कालुष्य है, अर्थात हमारे नेत्र में कोई समस्या भी नहीं है, अर्थात कोई निद्रा भी का भी प्रसंग नहीं है, कोई आलस्य भी नहीं कि मैं स्वप्न में चला गया हूँ। कभी कभी बैठे बैठे नींद आ जाती है, तो उस बीच में भी मनुष्य स्वप्न देख लेता है। तो ऐसा कोई प्रसंग नहीं है, इसलिए यह स्वप्न नहीं हो सकता है। मैया निश्चय कर लेती है कि यह स्वप्न तो नहीं है, निश्चय नहीं है।
तो हो सकता है देवताओं की माया हो। किम स्वप्न एतद उत देव माया, देवताओं की माया है शायद। आगे कह रही हैं नहीं नहीं मम निकृष्टाया मोहने देवानां प्रयोजना भावात। अच्छा, देवता लोग हमारे ऊपर क्यों अपनी माया का प्रयोग करेंगे? क्योंकि मैं तो क्या हूं, मैं तो अत्यंत तुच्छ हूं, मैं तो सामान्य एक नारी हूं। तो मेरे ऊपर देवता लोग क्यों अपनी माया का प्रभाव विस्तार करने लगे? ये भी संभव नहीं है कि देव माया हमारे ऊपर नहीं चल सकती है, अर्थात उसकी जरूरत ही नहीं है। तो ये स्वप्न तो नहीं है, मैं समझ रही हूँ भली भांति, तो देव माया भी नहीं है। किम स्वप्न एतद उत देव माया। आगे किंवा मदीयो बत बुद्धि मोह, ये संभव है मेरे बुद्धि में कोई वैपरीत्य आ गया है, विपर्यास आ गया है, मेरी बुद्धि विकृत हो गई है, जो ऐसा स्वरूप, ऐसा चित्र हमको अपने पुत्र के मुख गौहर में के माध्यम से उसके उदर में दिख रहा है। कश्चित बुद्धि मोह, अर्थात बुद्धि का विपर्यास, अर्थात बुद्धि का उलट फेर हो जाना, बुद्धि में विकृति आ जाना, ऐसा शायद संभव है। आगे मैया कहे नहीं नहीं, ऐसा भी नहीं है। क्यों? स्वास्थ्य समय संप्रति मम बुद्धि मोह कारणाभावात। मैया को मालूम है मैं स्वस्थ हूं, मैं तो अत्यंत आनंद हूं। इस लाला को प्राप्त करने के बाद मेरे हृदय में जो कुछ चिंता थी या जो विषाद था वो तो अब रहा नहीं। मैं तो अब निश्चिंत हूं, मैं तो अत्यंत आह्लादित हूं, आनंद में हूं। अभी मेरा जीवन का तो सबसे सर्वोत्कृष्ट समय आया है। तो इसलिए मेरी बुद्धि में विपर्यास का भी कोई संभावना नहीं है। स्वास्थ्य समय संप्रति, स्वास्थ्य मतलब शारीरिक स्वास्थ्य भी है और मैया का मानसिक स्वास्थ्य भी बहुत बढ़िया है, दिव्याति दिव्य है। तो स्वास्थ्य समय मम बुद्धि मोह कारणाभावात। तो अंतिम एक विकल्प बचा, इसी बच्चे का कुछ न कुछ यह कारनामा हो सकता है। अथवा अमुष्य मम बालकस्य नारायण समो गुण गर्ग वर्णित महाप्रभावत्वात्। अर्थात यह बालक तो है, मेरा पुत्र है, लेकिन गर्ग जी तो इसके बारे में कुछ उल्टा पुल्टा कह गए हैं। तस्मा नंदात्मजो यमते नारायण समो गुण श्रिया कीर्त्यानुभावेन गोपायस्व समाहितः। तो गर्ग महाराज जो वसुदेव महाराज जी के पुरोहित हैं, तो वे तो मिथ्या नहीं बोल सकते हैं। उन्होंने जब कहा है कि नारायण समः श्रिया और कीर्त्या, तो हो सकता है शायद इसी का ही कोई प्रभाव हो जिसके कारण मुझे ऐसा दिख रहा है। नारायण समोगुण इति गर्ग वर्णित महाप्रभावत्वात् कश्चन अचिंत्य आत्मयोग, अर्थात आत्मीय ऐश्वर्य, इसमें कोई ऐसा ऐश्वर्य है जिसका प्रकाश यह कर रहा है, उसके कारण शायद मुझे ऐसा दिख रहा है। तो इस तरह की व्याख्या श्री चक्रवर्ती बात कर रहे हैं। किं स्वप्न एतद उत देव माया किं वा मदीयो बत बुद्धि मोह अथो अमुष्यैव ममार्भकस्य यः कश्चन उत्पत्तिक आत्मयोगः। ऐसा करने के बाद तो फिर निर्णय क्या हुआ, किस निर्णय पर मैया पहुंची? क्योंकि अंतिम ये जो निर्णय है वो मैया को कभी भी स्वीकार्य नहीं है, चाहे गर्ग बोले हों, कोई भी बोला हो। क्योंकि मैया कभी भी नहीं मान सकती है कि यह ईश्वर है, यह बालक मेरा ईश्वर है, यह कभी नहीं मान सकती। इसलिए आगे के श्लोक में जो कहा गया है उसका श्रवण करें। अथो यथावन्न वितर्क गोचरम चेतो मनः कर्म वचोभिरंजसा यदाश्रयं येन यतः प्रतीयते सुदुर्विभाव्यं प्रणतास्मि तत्पदम्। अथो यथावन्न वितर्क गोचरम चेतो मनः कर्म वचोभिरंजसा यदाश्रयं येन यतः प्रतीयते सुदुर्विभाव्यं प्रणतास्मि तत्पदम्। मैया अब कहते कि ना, ये मैं जो
सोच रहा था ऐसा स्वप्न है, देव माया है, या बुद्धि का मोह है, या इस बालक का कोई प्रभाव है, ऐश्वर्य है, ये कहना ठीक नहीं है। क्यों? ये तो विकल्प है, अर्थात इसकी हम केवल कल्पना ही कर सकते हैं, लेकिन यथार्थ रूप में क्या हुआ है, क्या घटना है, क्यों ऐसा हुआ, इसको जानना संभव नहीं है। इसीलिए वितर्क गोचरम न, ये हमारा वितर्क का गोचर नहीं है। अर्थात हम अपने बुद्धि से इस निर्णय पर नहीं पहुंच सकती हैं कि ये क्यों हुआ है ऐसा। अर्थात दृश्यमानम इदम आश्चर्यम, यह जो अति आश्चर्य वस्तु हमारे पुत्र के उदर में, पुत्र के शरीर में दिख रही है, अति आश्चर्य जो चित्र मैं देख रहा हूं, यह वितर्क गोचरम न, यथावत, अर्थात कल्पना तो कर सकते हैं, कई तरह के विकल्प तो सोच सकते हैं, लेकिन यथार्थ्य न विकल्प गोचर नहीं है, वितर्क गोचर नहीं है। यथार्थ तो ये ऐसा ही है, हम इस निर्णय पर नहीं पहुंच सकते हैं। अर्थात इस बालक का यह कोई ऐश्वर्य है, इस निर्णय पर भी हम नहीं पहुंच सकती हैं। अर्थात कुछ पता नहीं चल रहा है कि क्या है। अथो यथावन्न वितर्क गोचरम, क्या तब फिर क्या करना चाहिए? तो ऐसी स्थिति में जब कोई संसार में अत्याश्चर्य वस्तु, जिसके कारण के बारे में, जिसके स्वरूप के बारे में हम लोगों को कोई निर्णय ना हो, तब मनुष्य को क्या करना चाहिए? भगवान की शरण में चला जाना चाहिए। तो इसलिए यह जो अत्यद्भुत चित्र, अत्यद्भुत स्वरूप, अत्यद्भुत विश्व मैं अपने पुत्र के शरीर में देख रही हूँ, उसका कोई कारण हमको नहीं दिख रहा है। इसलिए ये भगवान की ही इच्छा है, भगवान की माया है, भगवान के संकल्प से ही ऐसा होता है। इसलिए उस भगवान के चरण में मैं शरणापन्न हो रही हूँ, ऐसा कह करके यदाश्रयम, अर्थात यह जो अति आश्चर्य दिख रहा है मुझे, ये यदाश्रयम, अर्थात जिसको अवलंबन करके यह आश्चर्य दिख रहा है, अर्थात जिसमें यह आश्चर्य निहित है, जिस आश्रय में यह आश्चर्य प्रकाशित हुआ है, और ये न प्रतीयते, एवं जिसके कारण यह आश्चर्य हमको प्रतीयमान हो रहा है, दिख रहा है, और यतः, अर्थात जिस कारण से यह आश्चर्य दिख रहा है। तीन चीजें हैं, अर्थात जिस ईश्वर के कारण, क्योंकि आश्चर्यपूर्ण वस्तुओं का कारण के रूप में केवल भगवान ही दायी हैं, भगवान को ही उसके कारण मानना चाहिए। जैसे इतने बड़े हिमालय हैं, इतनी बड़ी गंगा जी हैं, इतने बड़े आकाश हैं, इतने तारे नक्षत्र हैं, तो इसके लिए हम किसको दायी करें, किसको कारण माने? कोई वैज्ञानिक, कोई राजा महाराजा, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति तो बना नहीं सकता है। इसलिए ये ईश्वर सृष्ट हैं, भगवान के द्वारा रचित हैं, इसी निर्णय पर हम लोगों को पहुंचना चाहिए। तो उसी तरह से मैया ये अत्याश्चर्य वस्तुओं को देख करके इस निर्णय पर पहुंचती है कि ये केवल भगवान का काम है, और यह आश्चर्यपूर्ण वस्तु भगवान में ही अधिष्ठित है, और ये भगवान के द्वारा ही प्रकाशित है, और ये भगवान ही इसके कारण है। तो यदाश्रयम येन प्रतीयते यतः इदम आश्चर्यम जातम, ऐसे जो भगवान हैं, उनके चरण कमल को मैं शरणापन्न हो रही हूँ। तत्पदम प्रणतास्मि, उस भगवान के चरण में मैं प्रणत, अर्थात शरण में जाती हूँ। जो पद सुदूर विभाव्य, अर्थात भगवान के जिस चरणों का ध्यान बड़े बड़े ऋषि, महर्षि, योगी, त्यागी लोग अति कष्ट से अपने हृदय में भगवान के चरण कमल को बैठा पाते हैं, सुदूर विभाव्य जो भगवान का चरण कमल है, उस चरण कमल में मैं शरण जाती हूँ। कैसे? चेतो मन कर्म वचो भी, अर्थात मन वाणी क्रम से, अर्थात मैं हर तरह से, हर प्रकार से अपना मेरा जो कुछ है उस सब के साथ में
भगवान के, उस भगवान के चरण कमल में शरण जाती हूँ जिस भगवान के कारण इस तरह के वस्तु दिख जाते हैं या इस तरह के वस्तु संसार में उपलब्ध होते हैं। अंजसा, अंजसा अर्थात इसमें ज्यादा मैं तर्कादि करना नहीं चाहती हूँ या अपनी बुद्धि ज्यादा लगाना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि लगा करके भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इस तरह की चीजें केवल भगवान के कारण ही संभव है। इसलिए मैं उन भगवान के चरण कमल में शरण जाती हूँ। इस तरह की कामना करती है यशोदा मैया। यहाँ पर हम श्रीधर स्वामीपाद की जो व्याख्या है और चक्रवर्ती पाद की जो व्याख्या है, इसमें थोड़ा सा विचार भेद है, तो उसका हम लोग श्रवण करेंगे। श्रीधर स्वामीपाद का कहना है कि यह जो 4 विकल्प था, स्वप्न, देवमाया, बुद्धि मोह या इस बालक का कोई कर्तृत्व, इस बालक की कोई महिमा, इसमें से श्रीधर स्वामीपाद कहना चाहते हैं चरमं पक्षम आश्रित्य अयम ईश्वर इति निश्चित्य आह। श्रीधर स्वामीपाद कह रहे हैं कि जो 4 पक्ष थे उसमें चरम पक्ष है कि मेरे बच्चे का ही कोई ऐश्वर्य है। तो इसके कारण मैया समझ गई ये मेरा पुत्र तो ऐसे ही है, लेकिन ये जगत का मालिक है, ये अनंत कोटि ब्रह्मांड का नायक है और ये भगवान है, इसलिए उसके शरीर में ये सब दिख रहे हैं। अर्थात इस निर्णय पर मैया पहुंच गई। ये श्रीधर स्वामीपाद की व्याख्या है। चरमं पक्षम आश्रित्य अयम ईश्वर इति निश्चित्य आह अथो यथावन्न वितर्क गोचरम इत्यादि। लेकिन श्री चक्रवर्ती पाद को ऐसा ऐसी सोच उनकी नहीं है। आप कह रहे हैं श्री चक्रवर्ती पाद, क्यों मैया कभी भी स्वप्न में भी यह स्वीकार नहीं कर सकती है कि ये भगवान है। अगर भगवान खुद कहें कि मैं भगवान हूं तो भी मैया तो स्वीकार नहीं करती है, दिखाने भी से नहीं करती है। गर्गादि बड़े बड़े पंडित के कहने पर भी मैया भगवान श्री कृष्ण को, अपने लाला को, नंद नंदन को कभी भी भगवान स्वीकार करने के लिए कभी भी तैयार नहीं। और इस तरह के पक्षपाती हैं हमारे श्री चक्रवर्ती पाद। आप इसकी व्याख्या में कह रहे हैं चतुर्थम तर्कम अपि तत्र स्वपुत्रे निश्चयम कर्तुम अशक्नुवति। अर्थात जो चतुर्थ तर्क था कि इसी का ही कोई महात्म्य है, ईश्वरत्व है, कोई आश्चर्यचकित सामर्थ्य है जिसके कारण ऐसा दिख रहा है, यह चतुर्थ तर्क था, यह चतुर्थ विकल्प था, उसका मैया निराकरण कर रही है। कैसे? चतुर्थम तर्कम अपि तत्र स्वपुत्रे निश्चयम कर्तुम अशक्नुवति। क्यों? न क्षुत पिपासा मौग्ध्य चांचल्यादि दर्शनेन असंभाव्य। अर्थात चतुर्थ विकल्प अर्थात जो ईश्वरत्व, वह हमारे पुत्र में कभी नहीं हो सकता है। मेरा पुत्र कभी ईश्वर हो ही नहीं सकता है। क्यों? अगर ईश्वर होता तो इसको भूख क्यों लगती? रोते रोते मेरे पास स्तन्यपान करने के लिए हमको विवश क्यों करता? दूसरे के घर में जाकर के चोरी क्यों करता है? क्षुत पिपासा मौग्ध्य अर्थात अविवेकी क्यों होता है? क्योंकि कभी जाकर के आग को पकड़ लेता है, कभी सर्प के साथ श्रृंग्यग्नि दंष्ट्री जल इत्यादि को पकड़ता है। तो ये तो मुग्धता है, अर्थात ये तो मूर्खता है। तो इसमें क्षुधा है, पिपासा है, मूर्खता भी है और चंचलता तो प्रचुर है, इसका कोई हिसाब नहीं है। कहाँ कहाँ जाकर के चोरी करता है, किसी के बछड़े को खोल देता है, क्या क्या नहीं करता है। चांचल्यादि दर्शनेन असंभाव्य। इसलिए ये कभी नहीं संभव है कि मेरा पुत्र ईश्वर है या उसका सामर्थ्य के कारण, उसके ऐश्वर्य के कारण हमको ऐसा दर्शन हो रहा है उसके उदर में। ये कभी नहीं हो सकता है।
असंभाव्य स्वबुद्धिया कमपि निश्चयम कर्तुम अशक्नुवति। तो फिर क्या हो सकता है? इतने जो चार विकल्प हैं, और मैया कहती है चार विकल्पों में से कोई भी संभव नहीं है, तो इसलिए और विकल्पों को खोजने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि चार विकल्प हमने लिया, स्वप्न, देवमाया, बुद्धिमोह या इसका ईश्वरत्व। इसमें से कोई विकल्प जब सही नहीं मिल रहा है, कोई विकल्प निर्णय के रूप में जिसको नहीं लिया जा सकता है, फिर आगे विकल्प को खोजने की जरूरत नहीं है। क्या करना चाहिए? अशक्नुवति तर्का गोचरस्यापि वस्तुनः वस्तुतः कारणम भगवान एव। अर्थात जो तर्क के अगोचर वस्तु हैं, अर्थात जिन वस्तुओं की सिद्धि, जिन वस्तुओं का निर्णय हम अपनी बुद्धि से, तर्क से, युक्ति से नहीं कर सकते हैं, उस वस्तु के कारण के रूप में भगवान को ही मान लेने में भलाई है, उसी में ही कल्याण है। तो यशोदा मैया को यह बोध है कि ज्यादा बुद्धि नहीं लगाने की जरूरत नहीं है, इसीलिए कारणम भगवान एव इति सामान्यतः निश्चिन्वति। अर्थात भगवान सामान्य कारण प्रत्येक वस्तु के प्रति हैं, और जो जिन वस्तुओं में अन्य व्यक्तियों का कर्तृत्व नहीं रहता है, उसमें तो भगवान का कर्तृत्व है ही है, ऐसा निश्चय करती हुई तत्पदाब्जम सुत स्वस्ति कामा प्रणमति। तो अपने पुत्र के कल्याण के लिए, कन्हैया के कल्याण के लिए, नंदनंदन के कल्याण के लिए उस भगवान की शरण में जाना चाहती है, उस भगवान की शरण में जाती है कि इस बच्चे का कहीं अकल्याण न हो। हे भगवान, सब कुछ ठीक हो जाए। यह जो दिख रहा है इसके उदर में, या इसमें जो ये विचित्र दृश्य हम देख रहे हैं, इसका अकल्याण न हो, इसकी कोई हानि न हो। हे भगवान, आप ऐसा करें, इस तरह की शरण जाती है। सुत स्वस्ति कामा प्रणमति अथो इति। अथो यथा वर्ण वितर्क गोचरम चेतो मनः कर्म वचोभिरंजसा यदाश्रयं येन यतः प्रतीयते सुदुर्विभाव्यम प्रणतास्मि तत्पदम। ऐसा कह करके अथो यथावत न वितर्क गोचरम, अर्थात यथार्थ्य न हम किसी सिद्धांत पर नहीं पहुंच सकते हैं। यथावत माने यथार्थ्य न नैव वितर्कस्य गोचरम। गोचरः कहना चाहिए, श्री चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं। गोचर शब्द नित्य पुंलिंग है, और यहाँ षष्ठी समास है वितर्कस्य गोचरः, तो वितर्क गोचरम ये आर्ष प्रयोग है, क्लिवत्वम आर्षम, अर्थात एतादृशम आश्चर्यम न वितर्क गोचरः, ऐसा कहना चाहिए। अर्थात यह जो आश्चर्य भगवान के शरीर में दिख रहा है, ये हमारे बुद्धि के तर्क का गोचर नहीं है। देखिए, संसार में समस्त पदार्थ को तर्क में सिद्ध करने का कुछ लोगों का आग्रह रहता है, बात बात पर कहते हैं, युक्ति देते हैं, ऐसा नहीं हो पाए तो कैसे संभव कि गोवर्धन का उद्धार करेंगे, एक बच्चा इतना बड़ा पहाड़ को कैसे उठाएगा, इस तरह के तर्क करते हैं। लेकिन तर्क हमेशा उपकारी नहीं होता है। कैसा तर्क उपकारी होता है? जो श्रुत्यनुकूल तर्क, अर्थात शास्त्रों में, वेदों में जो बात कही गई है, उस बात को सिद्ध करने के लिए जो तर्क उपस्थापित किया जाए, वह तर्क अभिनंदनीय है, वह तर्क उपकारी है, वह तर्क कल्याणकारक है। लेकिन शास्त्र विरुद्ध किसी भी सिद्धांत में पहुंचना तर्क के द्वारा, ऐसे तर्क से जीव का कल्याण नहीं होता है। तर्क के बारे में बहुत सारे, जैसे हमारे भर्तृहरि हैं, उन्होंने तर्क की काफी निंदा की है। अर्थात जैसे हम लोग शंख को पवित्र मानते हैं, शंख के जल से भगवान को स्नान भी कराया जाता है, और शंख अत्यंत पवित्र माना जाता है।
लेकिन तर्क के द्वारा कैसे संभव है कि शंख पवित्र है? शंख तो हड्डी है, तो हड्डी तो अपवित्र हुआ करती है। तो अगर कोई नैयायिक कहे शंखम अपवित्रम अस्तित्वात्, तो ऐसा अगर कहें तो उससे फायदा नहीं होने वाला है। शास्त्र में शंख की पवित्रता मानी गई है, इसलिए शंख पवित्र है। तो इसी तरह से यशोदा मैया भी समझती है कि तर्क का अवलंबन करके अपनी बुद्धि से मैं इसका कोई निर्णय नहीं कर सकती हूँ, तो केवल ऐसी जगह पर, ऐसी स्थिति में भगवान की शरण में चला जाना ही बुद्धिमत्ता है। मैया वैसा करती है। और इस श्लोक को चक्रवर्ती पाद आगे कैसे व्याख्या करते हैं, उसका श्रवण भगवान की कृपा हो तो कल करेंगे। आज की कथा का यहीं विश्राम करते हैं। सभी को प्रणाम निवेदन पूर्वक हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रणाम सभी को। नमो नमः। जय 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 श्री जय प्रभुपाद। जय हरे राम, हरे राम, प्रणाम। हरे राम। जय जय राम, जय राम, प्रणाम सभी को। प्रणाम 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 नमो नमः। नमो नमः नमो नमः।